Okay, Siddhi, can you hear me? Yes, sir. Yeah. So why is choke used? Why is choke used? Mm, Uh, like choke is like a inducer, like in Inducer, inducer or inductor? inductor. Why Sorry, inducer? inductor. Hmm. Because if we use a resistor, it will waste the power. So Why? instead of that, Just tell why choke is used. Choke is used to reduce the voltage. okay, We cannot provide high voltage to a tube light. Tube light cannot work in 220 volts. So choke is used so that it can consume maximum voltage and can provide the required amount of voltage to the tube light to work. ये आंसर है. क्लियर है अद्वैत आर्यन? यस सर. क्वेश्चन पूछा गया क्या है कि वाई चोक इज यूज्ड. I am not asking why register is not used. The question was not that. So please understand, you have to write as per the question, not as per कुछ भी पढ़े और सब डाल दो. क्वेश्चन पूछा गया चोक क्यों यूज हुआ है. You tell choke is used so that it can reduce the input voltage to the tube light. So tube light cannot work in high voltages. So choke is used so that it can consume the maximum voltage and the required amount of voltage can be given. समझ रहे हो? yes, This is the answer. हाँ yes, सर. Now if I ask you, why not resistor also can consume power? Why it is not used? Then you say resistor will waste lot of power. We know that P average equal to V RMS I RMS cos phi, correct? Yes or no? Cos Yes phi sir. equal to 1. Yes sir. So in case of resistance, cos phi is equal to 1. So maximum power is wasted if we use a resistor. However, if we use a inductor, your cos phi is very near to 0. So the power average is very less. So it will consume very less power as compared to resistor. Clear? Yes सब sir. लोग क्लियर? yes. प्रॉपरली पढ़ो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो. Now, what is the power factor? I'll ask you question. What is the power for Advait? Don't answer anybody. Advait, what is the power factor for a RC circuit? Power factor. What is power factor first of all? Tell me, define. What is power factor? Aryan, what is power factor? Sir, power factor is the ratio of power consumed by upper क्या and power consumed by क्या the बात same कर रहा है यार? circuit. क्या बात कर रहा है? पावर फैक्टर इज cos phi. P average equal to VRMS IRMS into cos phi. Cos phi is the power factor. Yes or no, Siddhi? Yes, हाँ हाँ. Cos phi is the power factor. So I am asking you, what is the power factor for a RC circuit? So you have to find phi. What is phi? Phi is equal to R by Z. What is Z? For RC circuit, what is Z? It is under root of, xc square plus r square. yes. So it will be, answer is cos phi is equal to cos of R square divided by, Root x c square yes, plus r not square. R square, R by root of x square plus R square. This is the हाँ, answer. yes. Clear? क्या मतलब कंप्लीटली यू आर कंप्लीटली फॉरगेटिंग और व्हाट? जो पढ़ाया गया था टेबल, वो टेबल नहीं पढ़े हो क्या? द टेबल इज देयर और नॉट? जो टेबल मैंने सिखाया था, यहाँ पर क्या था? यहाँ पर था टाइप ऑफ सर्किट, हाँ. यहाँ पर था फाई, सॉरी, यहाँ पर था क्या था? यही था Cos ना? phi.
हाँ और यहाँ पर cos phi। cos आरसी phi सर्किट के लिए phi है और phi इज इक्वल टू R by Z। तो R क्या है? आरसी सर्किट में R है, C है, सी है। मतलब R है और XC है। तो यहाँ पर XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और root ये हो गया phi। तो ये होगा cos ऑफ दिस मच। इतना आपको याद नहीं आ रहा है? नेक्स्ट, what is Siddhi, tell me what is the what will happen if your Z equal to R or your XL equal to XC? What will happen? Z is equal to R. When XL equal to XC for LCR Yes. circuit, if XL equal to XC, what will happen to the, what will happen? आर्यन, बी प्रिपेयर्ड, दोनों प्रिपेयर्ड रहो। एक क्वेश्चन पूछा तो दूसरा शुड बी रेडी विद द आंसर। इक्वेशन क्या है एलसीआर सर्किट का? देखो, एक्सएल इक्वल टू एक्ससी, मतलब ये कौन सा केस में आता है? कौन सा केस में आता है? थर्ड केस में आता है कि नहीं? हाँ थर्ड केस में आता है। तो Z क्या है? एक्सएल माइनस एक्ससी, सॉरी, एक्सएल माइनस एक्ससी होल स्क्वायर प्लस आर plus स्क्वायर। R square. When XL equal to XC, that means this will become 0. So your हाँ, Z sir. will become R. आर That means tan phi 0 हो जाएगा। अरे वो ठीक है। पहला चीज क्या है? Circuit has inductor, resistor and a capacitor will behave as if there are no inductor, no capacitor. It will behave like a purely resistive Resistor. circuit. Purely resistive circuit. रेजिस्टिव सर्किट, ये पहला चीज है। पहला चीज ऐसे लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सएल इक्वल एक्सी, योर इंपिडेंस वैल्यू ऑफ द सर्किट, इंपिडेंस वैल्यू ऑफ द सर्किट। व्हाट इज जेड? जेड इज कॉल्ड इंपिडेंस ऑफ द एलसीआर सर्किट विल बी आर, ओनली आर। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। क्यों? इक्वेशन करो, जीरो डालो। सेकेंड पॉइंट, द सर्किट विल बिहेव एज इफ देयर आर नो रेजिस्टर, नो कैपेसिटर एंड नो इंडक्टर, ओनली रेजिस्टर। थर्ड पॉइंट, इट विल बिहेव एज ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। फिफ्थ पॉइंट क्या है? फेजर डायग्राम बनाओ, V का, I का, R का और I का दोनों सेम है, मतलब सेम फेज में। हाँ सर। मतलब दोनों बोथ इनपुट वोल्टेज। अरे कौन बात कर रहा है? डिस्टर्ब हो रहा है। आर्यन घर पे बोलो। I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। बोथ द करंट and the voltage are in same phase, no phase, then tan phi is equal to 0. All this have to be written, then you get 5 marks. See, it is very very important. As a teacher I am teaching, but if you don't write, then no use. Getting marks in exam also is a point. ये सब हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हाँ सर। सिद्धि पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हाँ सर। आप पढ़े थे, बिल्कुल पढ़े थे, मैंने पढ़ाया है। आप दो केस नहीं पढ़े, बट ये केस तो आप पढ़े हो ना। एक्सएल इक्वल टू एक्सी, फिर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आता है, सर्किट विल ऑसिलेट इन दिस फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, तो एफ इक्वल टू 1/2 पाई रूट ऑफ एलसी, ये हमने पढ़ा था। चलो, ओके, वी कंटिन्यू। So next, today we are going to learn, first we learned what? Series what? Series oscillation, yes, series oscillation, series resonance हमने पढ़ा था। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? पैरेलल रेजोनेंस। हमने पहले सीरीज रेजोनेंस पढ़ा था ना। इंडक्टर है, कैपेसिटर है, जब ये 0 हो जाएगा तो इक्वली ये रहेगा। ये है सीरीज रेजोनेंस। ये आपको चैप्टर में ऐसे दिया गया है स्टेट बोर्ड में। अभी हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल रेजोनेंस। पैरेलल रेजोनेंस में क्या होता है? एलसी ऑसिलेशन पढ़ेंगे। एलसी ऑसिलेशन मतलब क्या रहेगा? एक इंडक्टर रहेगा,
ठीक है, और एक क्या, इंडक्टर और एक कैपेसिटर, दोनों पैरेलल ये में रहेंगे। क्लियर, पैरेलल ये में रहेंगे। गुड, समझ गए ना कैसे पैरेलल है? हाँ पैरेलल सर, कैसे हाँ। समझ गए ना, एंड टू एंड में है, ठीक है ना। सो दिस इज कॉल्ड पैरेलल एलसी सर्किट, एलसी सर्किट। क्लियर, यस सर। सिद्धि क्लियर? ओके, तो इनिशियली क्या होता है मैं बताता हूँ, पहले मैं आप समझो फिर आप लिखना, ठीक है। इनिशियली क्या होता है, इनिशियली क्या होता है, हम एक सर्किट लेते हैं जहाँ पर एक आपका कैपेसिटर है और आपका एक इंडक्टर है, तो मुझे बताओ, हाँ, तो अभी हम लोग क्या किए, ये कैपेसिटर को हम लोग एक बैटरी में कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर एक स्विच डालते हैं, स्विच, ठीक है। स्टार्टिंग में ये स्विच ओपन है, ये बैटरी है, ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है ना, बैटरी नहीं है, सेल है, तो कैपेसिटर इज डिस्चार्ज, मतलब कोई चार्ज नहीं है। तो व्हाट वी डू, वी कनेक्ट द स्विच। जैसे स्विच ऑन हुआ, यहाँ से करंट फ्लो होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये कैपेसिटर विल बिकम फुल्ली चार्ज। और जैसे चार्ज हो जाता है, हम इस कैपेसिटर को हटा देते हैं, अब ये चार्ज में आ गया, तो कैपेसिटर इज इन फुल्ली चार्ज कंडीशन। तो यहाँ पूरा प्लस प्लस है, यहाँ पूरा माइनस माइनस है, तो ये Q प्लस Q नॉट है, यहाँ माइनस Q नॉट है, ठीक है। समझ में आया क्या हुआ क्या नहीं हुआ? हाँ सर। मतलब पहले कैपेसिटर डिस्चार्ज मोड में था, मैंने इसको चार्ज करके बैटरी हटा दिया, अब मैंने इसको पूरा, तो कहाँ से लाएगा एनर्जी तो कहीं से लाएगा ना, तो बैटरी ने इसको एनर्जी दिया, और इसके पास क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी भर गया, मतलब इसके पास अभी प्लस प्लस और माइनस माइनस, ये कैपेसिटर विल होल्ड व्हाट टाइप ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, ठीक है। एंड व्हाट विल इंडक्टर स्टोर, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी। समझ गया? ये इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड चार्ज स्टोर करेगा। क्लियर, दोनों तीनों अद्वैत? यस सर। ओके, तो हम लोगों ने क्या किया, पहले हम लोगों ने इसको चार्ज दे दिया, पूरा भर दिया चार्ज में, पूरा खिला दिया, तो अभी ये पूरा जो बोलते हैं ना, ये पूरा सर्किट, ये पूरा कैपेसिटर चार्ज में भर गया है। बट चार्ज ज़्यादा देर तक रहेगा नहीं, चार्ज फ्लो करने लगेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, ये टाइम इक्वल टू 0 है, ये टाइम इक्वल टू 0 में कैपेसिटर क्या फुल्ली चार्ज है और कुछ नहीं हो रहा है, और करंट भी फ्लो नहीं हो रहा है, कुछ समय के बाद एट t इक्वल टू टी, कुछ समय के बाद हमने क्या देखा, धीरे धीरे वो चार्ज फ्लो करने लगा, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव था, तो धीरे धीरे यहाँ आई फ्लो करने लगा, कुछ करंट फ्लो धीरे धीरे करने लगा। तो जैसे ही फ्लो करने लगा, ये वाला पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा ना, और ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा, और करंट ऐसे फ्लो करने लगा। मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है, या धीरे धीरे आके इसको नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करने लगे, ये सुन लो। तो करंट क्या हुआ इस यहाँ पर, तो पहले करंट 0 था, अभी करंट बढ़ने लगा, बट चार्जेस यहाँ पर ज्यादा था, अभी धीरे धीरे ये चार्ज Q हो गया, पहले Q नॉट था, अभी कम हो गया, मतलब Q क्या है, घटने लगा। हाँ सर। क्योंकि Q घट रहा है, तभी तो करंट बढ़ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर करंट बढ़ा बट चार्जेस घटा। समझा? क्लियर अभी तक? यहाँ तक क्लियर है? सिद्धि क्लियर? Yes, sir. समझो क्या हो रहा है, देखो प्रॉपरली, हम लोग सिखाएंगे, मैं सिखा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं इसको थोड़ा लिखता हूँ, ये वाला आपका फर्स्ट है, ये सेकंड है। थर्ड में क्या हुआ, ऐसे बढ़ते करंट अभी मैक्सिमम हो गया, मतलब सारे चार्जेस क्या हो गया, खत्म हो गए, और करंट मैक्सिमम पे आ गया। यहां पर चार्जेस 0 हो गया, ये सब दे दिया, और करंट फुल मैक्सिमम में जा रहा है, करंट पूरा मैक्सिमम में
जा रहा है। आई करंट था, अभी आई नॉट हो गया। देखो आई नॉट का मतलब क्या है, पीक करंट, हमने पढ़ा था ना आई नॉट, वी सर, नॉट हाँ। पीक, तो आई नॉट मतलब पीक करंट, सबसे ज्यादा करंट। तो आई इज ऑलवेज लेस देन आई नॉट, क्यू इज ऑलवेज लेस देन क्यू नॉट, ये याद रखो, ठीक है ना। हम ये नोटेशन को यूज करें ताकि समझोगे कि क्यू नॉट क्यू से बड़ा है, क्यू घटता है, क्यू नॉट कांस्टेंट है। जब फुल चार्ज हो जाता है तब ये क्यू नॉट होगा, और जब फुल आई नॉट है तभी आई नॉट होगा। तो अभी करंट देखो आई नॉट हो गया, मतलब करंट है आई इक्वल टू आई नॉट, क्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। तुम देखो करंट धीरे धीरे बढ़ने लगा, क्यू घटने लगा, यहां पर क्या हो गया, करंट जीरो हो गया, सॉरी चार्ज जीरो हो गया, और करंट क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, और ये वाला पॉजिटिव हो गया, ये ना नेगेटिव हो गया। समझ में आया, समझ में आया। Yes, sir. हाँ सर। अभी क्या हुआ, अभी क्या होगा, अब ये इंडक्टर बोला तुमने तो मेरे को चार्ज दे दिया, यू हैव गिवन मी अ लॉट ऑफ चार्ज, यू हैव लॉट मी गिव लॉट ऑफ एनर्जी। तो ये करंट आपको पता है एक सॉलिनॉइड में, बेसिकली एक सॉलिनॉइड है, जब करंट पास करेगा तो क्या होता है, एक ईएमएफ जनरेट होता है, पता है, फैराडे लॉ, फैराडे लॉ, Electromotive force. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और वोल्टेज, वो फैराडे लॉ में बोलता है E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। dt. ये कौन सा है, लेंज लॉ। हाँ सर। पहले माइनस नहीं था तो फैराडे ये बोला था, लेकिन लेंज ने क्या बोला कि ये जो चार्ज देता है ना, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। पहले क्या करेगा, इंडक्टर अपोज करेगा, जैसे करंट यहाँ बढ़ रहा है, इंडक्टर बोलेगा भाई मैं तेरे को अपोज करूंगा, तो ये एक उल्टा उल्टा करंट फ्लो कराएगा। तो धीरे धीरे, वो डायरेक्टली बढ़ने नहीं देगा, वो बोला धीरे धीरे बढ़ो, मैं तेरे को जोर से बढ़ने नहीं दूंगा। तो इसीलिए अगर जोर से बढ़ता तो फटक करके हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ समय के बाद करंट बढ़ते 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 अभी बढ़ के आई नॉट हो गया। तो कभी भी याद रखो इंडक्टर का काम क्या है, अपोज करना। क्या करता है, अपोज करना। दो चेंज है, जो भी चेंज हो रहा है उसको अपोज करना। क्या चेंज हो रहा है, यहां पर करंट बढ़ रहा है, तो ये क्या किया, अगर करंट ये डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो वो क्या करेगा, एक ऑपोजिट डायरेक्शन में और एक करंट देगा ताकि इसको अपोज करे। अगर बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो ये उसको घटाना ट्राई करेगा, अगर करंट घटेगा तो उसको क्या करेगा, बढ़ाने का काम करेगा। समझा, समझ में आया इंडक्टर का काम क्या है। हाँ सर, हाँ। इंडक्टर विल अपोज द चेंज। यहां पर पहले जीरो था करंट, चार्जेस ज्यादा था, करंट बढ़ रहा है, तो करंट बढ़ रहा है, इंडक्टर बोला देखो मैं तेरे को जल्दी बढ़ने नहीं दूंगा, मैं अपोज करूंगा। यहां पर और एक करंट दे रहा है, छोटा सा करंट दे रहा है, वो अपोज कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे करंट बढ़ रहा है, उसको जल्दी बढ़ने नहीं दे रहा है। अरे सिंपल है, तुम क्या करोगे, तुम मेरे पास आओगे, मैं तुमको धक्का मारूंगा, तुम और भी मारोगे, मैं थोड़ा सा धक्का मारूंगा, लेकिन ऐसा होगा मैं धीरे धीरे क्या करोगे, तुम मेरे को धक्का लेके चले जाओगे। मैं मतलब चार लोग हैं, तुम मेरे को धक्का मारोगे, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको तुमको ट्राई करूंगा रोकने के लिए, फिर से रोक रहा हूं, फिर तुम धक्का मारोगे, फिर से रोकने ट्राई करूंगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मैं हार जाऊंगा। होगा कि नहीं, इंडक्टर वही काम करता है, इंडक्टर वही काम करता है। सर रेजिस्टर और इंडक्टर में क्या फर्क है सर? रजिस्टर थोड़ी ना वो करता है, रजिस्टर तो पूरा ये करता है ना। तो रजिस्टर ओके, रजिस्टर क्या करता है, रजिस्टर थोड़ी ना कुछ करंट बढ़ाता है, वो जनरेट नहीं करता है। रजिस्टर ओनली इट इज ओनली वोल्टेज अक्रॉस होता है। इंडक्टर क्या करता है, करंट जनरेट करता है, ओके, करंट जनरेट करता है, ईएमएफ जनरेट करता है। इंडक्टर इज लाइक ए बैटरी सोर्स, कभी भी याद रखना। ओके। इंडक्टर विल एक्ट लाइक, देखो ये अगर करंट जनरेट कर रहा है मतलब क्या, ये एक बैटरी सोर्स है कि नहीं। हाँ तो अभी जो करंट आ गया इसके ऊपर जो इतना सारा करंट आ गया, ये क्या होगा, अभी ये एक बैटरी सोर्स के बराबर है। तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अरे एनर्जी स्टोर किया है ना, ये एनर्जी स्टोर किया है, तो ये कौन सा एनर्जी स्टोर किया है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी। ओके, अभी तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम हुआ? नहीं सर।
तो इंडक्टर क्या बोला, इंडक्टर बोला यार तुमने मेरे को इतना चार्ज दे दिया, इतना एनर्जी दे दिया, मैं करूंगा क्या, मैं तो रख नहीं पाऊंगा, मैं इसको फिर से आपको वापस करूंगा, आपको वापस करूंगा। तो इंडक्टर क्या किया, इंडक्टर क्या किया, फिर से धीरे धीरे करंट छोड़ने लगा। इंडक्टर अभी दूसरे डायरेक्शन में करंट छोड़ने लगा। एक मिनट। तो इंडक्टर अभी पूरा चार्ज हो गया, तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो गया, है कि नहीं। तो अभी इंडक्टर क्या किया, दूसरे डायरेक्शन में चार्ज फ्लो करने लगा। मतलब अभी अभी डायग्राम ऐसा है, पहले प्लस था, ये नेगेटिव था, अभी ये प्लस हो गया, ये नेगेटिव है। अभी ये करंट में करंट फ्लो होने लगा, तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आया। अभी करंट क्या हुआ, ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने लगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने लगा। और ये आपका प्लस क्यू, ये आपका माइनस क्यू। तो धीरे 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 देखो करंट बढ़ रहा है। अभी यहां पर क्या हो रहा है, करंट बढ़ रहा है, और क्या है, एनर्जी क्या हो रहा है, क्यू क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बताओ, इसमें क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यू भी बढ़ रहा है ना। क्यू बढ़ रहा है, लेकिन करंट क्या हो रहा है, करंट घट रहा है, कम होगा, कम होगा। करंट घट रहा है ना, करंट घट रहा है ना यहाँ पर। क्यों, क्योंकि ये जो करंट है ये सब क्यू में बढ़ रहा है, तो यहाँ पर करंट घट रहा है, क्यू बढ़ रहा है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, करंट पूरा खत्म हो गया, करंट पूरा खत्म हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस क्यू नॉट हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस क्यू नॉट हो जाएगा। और यहाँ पर इंडक्टर के पास कोई चार्ज नहीं है, इंडक्टर अभी खत्म हो जाएगा, कोई एनर्जी नहीं है, यहाँ पर फिर से भर गया। अब तुम देखो पहले यहाँ पर प्लस था, अभी यहाँ पर माइनस हो गया। कुछ समझ में आया, कुछ समझ में आया। मतलब एक साइकिल में ये इसने पोलैरिटी चेंज किया है। मतलब पहले इसके पास चार्ज था, इसने इसको दिया, फिर इसने इसको दिया, तो मतलब ये क्या ऑसिलेट हो रहा है, ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी एंड मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी। समझ में आया। मतलब एक एनर्जी दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है, दूसरा एनर्जी फिर से पहले में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये चेंज चल रहा है। कुछ समय के बाद फिर से ये पोजीशन में आ जाएगा, फिर से ये पोजीशन में आ जाएगा। मतलब ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक पीरियडिक फिनोमेना है। समझा। यस। मतलब क्या ऑसिलेट हो रहा है, एक तो तुम्हारा चार्ज ऑसिलेट हो रहा है, और दूसरा क्या ऑसिलेट हो रहा है, क्या ऑसिलेट हो रहा है, एनर्जी ऑसिलेट हो रहा है। पहले ये रखा, फिर इसको दिया, फिर ये देखो पहले इसको पास था, इसने धीरे धीरे इसको दिया, फिर ये ज्यादा हो गया, फिर इसने धीरे धीरे इसको दिया, है कि नहीं। सो लिख लिया आप लोगों ने। यस सर। ओके। तो व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस, during this process your total energy does not change. एनर्जी का एक था, एनर्जी इज नाइदर created nor destroyed, it only changes from one form to another. yes, very good, one form to another. तो पहले क्या था, EFE था, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी था, अभी क्या हो गया, MFE हो गया। कुछ समय के बाद फिर से ये EFE हो जाएगा। हम लोगों ने पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर चेंजेस। जब कोई बॉडी मूव करता है तो उसके पास जीरो पोटेंशियल एनर्जी रहता है, जब बॉडी मूव करता है उसमें काइनेटिक एनर्जी रहता है कि नहीं। जब बॉडी रेस्ट में है तो उसके पास क्या एनर्जी रहता है, पोटेंशियल एनर्जी रहता है, जीरो काइनेटिक एनर्जी रहता है। तो अभी हम लोग अगर इसको प्रूव करेंगे तो कैपेसिटर कौन सा एनर्जी स्टोर करता है, EC ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल टू हाफ इंटू क्यू स्क्वायर बाई सी, याद रखो। और इंडक्टर क्या स्टोर करता है, EL क्या है, हाफ इंटू LI स्क्वायर, हाफ इंटू क्यू नॉट करो, आई नॉट करो, क्योंकि मैक्सिमम करंट है। ठीक है, मैक्सिमम करंट है। जब ये वाला स्टेज 1 में है, जब इंडक्टर के करंट कैपेसिटर के पास ज्यादा चार्ज था,
इंडक्टर के पास कुछ नहीं था। और ये कब है? स्टेज 4 में है, जब कैपेसिटर के पास कुछ नहीं था। इंडक्टर के पास ये स्टेज 3 में है, जब इंडक्टर के पास कुछ नहीं है। तो ये चेंज हो रहा है। अगर मान लो ये टोटल मान लो 100 है, तो पहले क्या था? पहले 100 था कैपेसिटर के पास, इंडक्टर के पास कुछ नहीं था। उसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे इसके पास कम होने लगा, 70 हुआ, इसके पास 30 हुआ, फिर धीरे धीरे इसके पास 100 हो गया, इसके पास 0 हो गया। कुछ समय के बाद फिर से इसके पास 30 हो गया, इसके पास 70 हो गया, और कुछ समय के बाद इसके पास फिर से 100 हो गया, 0 हो गया। समझ में आया? हाँ सर। सीधी समझ में आया? यस सर। तो मतलब क्या है? एनर्जी क्या हो रहा है? ऑसिलेट कर रहा है कि नहीं? पहले इसके पास 100 था, फिर इसके पास आ गया, फिर इसके पास आ गया, है कि नहीं? यस सर। So these type of oscillations are called LC oscillations. Clear? यस सर। Advait clear? Okay. तो टोटल हमने क्या बोला? टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, यस और नो? टोटल एनर्जी कंजर्व्ड मतलब Q square by 2C plus half into Li square is equal to Q naught square by 2C. ये पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन, हाँ कुछ आवाज आ रहा है, लेट मी आई एम लीविंग एंड देन कनेक्टिंग। ओके, हेलो, अभी आ रहा है? हाँ सर, अभी क्लियर है। अब क्लियर है। तो ये एक पहला इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन क्या है? Q स्क्वायर बाय 2C प्लस हाफ Li स्क्वायर इक्वल टू Li नॉट स्क्वायर बाय 2। समझ रहे हो? वही 70-30 का कॉन्सेप्ट है, समझ रहे हो ना? हाँ सर। ओके, अभी हम लोग इसका क्या करेंगे? इक्वेशन लेंगे, इक्वेशन लेने वाले। सो क्या इक्वेशन था? मैंने क्या बोला कि अपना कैसा, ये आपका प्लस है, प्लस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू है। मतलब अब हम एक ऐसा स्टेज ले रहे हैं जहाँ पर दोनों के पास पूरा चार्ज नहीं है, इसके पास कुछ चार्ज है, इसके पास कुछ एनर्जी है, ठीक है? तो एक यहाँ पर क्यू कम हो रहा है, आई बढ़ रहा है, ठीक है? ओके, तो हम लोग क्या करेंगे? किरचॉफ लॉ लगाएंगे, अप्लाइंग किरचॉफ लॉ। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े थे। तो क्या होता है किरचॉफ लॉ में? हम लोग एक लूप कंसिडर करेंगे, हम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो ये हो गया Q बाई सी माइनस, अभी क्या है? ये वाला पॉजिटिव या नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव जा रहे हैं तो माइनस आएगा, माइनस ऑफ L डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 0। तो Q बाई सी इज इक्वल टू L डी आई बाई डी टी। यस यस सर। तो क्या किया मैंने क्या किया? I write this as, so what is this I? Sorry, what is di? I क्या है? I is rate of change of charge per unit time, yes or no? यस यस। तो di by dt करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस d स्क्वायर बाई क्यू बाई डी टी स्क्वायर, yes or no? हाँ। तो इसको मैं क्या लिखता हूँ? Q बाई सी इज इक्वल टू L इंटू डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर। और ये पॉजिटिव है, पहले ये माइनस था, तो ये अभी माइनस, पहले पॉजिटिव था, अभी नेगेटिव आ गया, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है ना। हाँ तो डी आई बाई डी टी है माइनस डी स्क्वायर क्यू, तो ये आ गया, यस और नो? तो अभी मैं क्या करूंगा? कैन आई राइट दिस एज, इसको भूल जाओ, एक मिनट, कैन आई राइट, ये L को मैं इस तरफ लेके ऐसे लिख सकता हूं, Q बाई एल सी इज इक्वल टू माइनस डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर लिख सकता हूं। हाँ सर। हाँ। अब ये दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? Q बाई एल सी प्लस डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यस और नो? यस सर, ये भी हो जाएगा। हाँ। ये इसको क्या बोलते हैं? दिस इज द इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन
और अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक साइन वेव, ठीक है, इधर इज एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। और एक एग्जांपल क्या है, पेंडुलम, हाँ वॉच सर का हाँ, पेंडुलम, ऊपर है। उसको भी बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, हाँ सर, ठीक है। ऑसिलेशन से पढ़ा था हाँ। हाँ, मतलब ये जो एनर्जी जो टाइम पास कर रहा है, ये इसको दे रहा है, वो उसको दे रहा है, तो ये ऑल्सो फॉलोज दिस दिस सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे तब समझ में आएगा। अभी तक क्लियर है? हाँ हाँ। हाँ सर हाँ। लिख लिख लिया? है सर, एक मिनट सर। दिस इज कॉल्ड ए सिंपल हार्मोनिक मोशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, हाँ सर, हो गया सर। ओके। अभी हम लोग खाली यही चाहिए, अभी खाली यही याद रखो, कौन सा, डी स्क्वायर क्यू बाय डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाय एल सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये अपना इक्वेशन जो आपने को मिला। तो अभी नॉर्मल इक्वेशन कैसा रहता है, नॉर्मल इक्वेशन डिफरेंशियल कैसा रहता है, डी स्क्वायर बाय एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। अभी इन दोनों को कंपेयर करो, आपको क्या लग रहा है, x क्या है, q है कि नहीं? हाँ तो x अगर q है, x अगर q है तो ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, रूट ऑफ 1/LC। ओमेगा स्क्वायर होगा 1/LC, रूट ऑफ। हाँ मतलब देखो, इसको तुम कंपेयर करोगे किसके साथ, ये तुम्हारा x बन गया, जब ये x बन जाएगा तो रिमेनिंग क्या है 1/LC, तो ये 1/LC इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर है कि नहीं? हाँ, एंड व्हाट इज ओमेगा, 1/रूट ऑफ LC। और if you write in f we can write as 2 pi into LC, रूट एल हाँ। करेक्ट? हाँ सर। करेक्ट। ये है क्या है, ये फ्रीक्वेंसी में ऑसिलेशन होता है। तो इस समझ गया, ये फ्रीक्वेंसी में ऑसिलेशन होता है। अभी तक क्लियर है? हाँ सर Yes. हाँ। ओके, ये फ्रीक्वेंसी में ऑसिलेशन होता है। नेक्स्ट हम लोग क्या, इसका हम लोग सभी इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होता है, क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, इसका ये सॉल्यूशन है x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, इसका ही सॉल्यूशन है। और ए क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अब तुम बोलोगे सर पेंडुलम में डिस्प्लेसमेंट क्या है, पेंडुलम में डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये वाला है, मीन पोजीशन से कितना दूर वो जा रहा है कि नहीं? देखो, जब तुम हाँ, स्टार्ट सर। में पेंडुलम को खींचोगे और छोड़ोगे, धीरे धीरे पेंडुलम जोर से जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर वापस जाएगा। बट अभी जितना पहले गया था, धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो पावर घट रहा है कि नहीं? हाँ सर। धीरे धीरे पेंडुलम ऐसे होगा। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, कितना, अगर मैं कंटिन्यूसली पावर दूं तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा मीन पोजीशन से, वो आपका ए है, एम्पलीट्यूड बोलते हैं इसको, ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। आया समझ में, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, क्लियर? सिमिलरली इसका क्या होगा, इसका होगा Q इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब तुम बोलोगे सर Q नॉट क्या है, जैसे यहां पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पर क्या है, मैक्सिमम चार्ज, मैक्सिमम चार्ज, क्लियर? क्लियर? Yes. यस सर। मैक्सिमम चार्ज इट विल होल्ड, दैट इज द इक्वेशन। और Q क्या है, यहां पर देखो x Q है और A क्या है, Q नॉट है, मतलब कितना मैक्सिमम चार्ज वो रखेगा, ठीक है, क्लियर? Yes, sir. अब मुझे बताओ, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको लेंगे, ये वाला इक्वेशन को हम लोग लेंगे, ठीक है। तो लेट अस टेक दिस इक्वेशन। अभी मुझे बताओ, जब फिगर में हमने बोला था t इक्वल टू 0 में क्या हुआ था, q इक्वल टू क्यू नॉट था ना, हाँ हाँ मतलब वहां पर पूरा एनर्जी कैपेसिटर के पास ही था ना।
हाँ सर। मतलब कैपेसिटर के पास पूरा क्यू नॉट ही था, करंट बिल्कुल जीरो था, और करंट क्या था, जीरो था। कौन सा फिगर, ऐसा फिगर था ना, यहाँ पर प्लस था, यहाँ माइनस था, यहाँ क्यू नॉट था, यहाँ क्यू नॉट था। मतलब पूरा चार्ज, बैटरी को हम लोगों ने चार्ज, कैपेसिटर को चार्ज कराया बैटरी से और छोड़ दिया। अभी तक स्टार्टिंग में T इक्वल टू जीरो, Q इक्वल टू क्यू नॉट एंड I इक्वल टू जीरो, यस और नो? तो Q इक्वल टू क्यू नॉट में क्या होगा मुझे बताओ? T तो जीरो हो गया। ये कब होगा Q इक्वल टू क्यू नॉट? जब साइन ओमेगा टी प्लस फाइव विल बी वन। वन, यस सर। ये कब वन होगा? ये कब वन होगा? जब ये वाला चीज 90 होगा। 90 होगा। हाँ सर। तो इसका मतलब ओमेगा टी प्लस फाइव शुड बी 90। यस। बट हमको पता है t इक्वल टू जीरो में, तो t इक्वल टू जीरो में ये तो जीरो हो गया, तो फाइव कितना होगा? 90 होगा। 90। फाइव 90 होगा। अरे t इक्वल टू जीरो में ओमेगा टी तो जीरो हो जाएगा ना, हाँ सर, हाँ भाई। तो मतलब फाइव कितना रहेगा? 90 90 रहेगा। समझ गया? इसका मतलब ये जो चार्ज ऑसिलेशन होता है इसका साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नहीं है, Q इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। क्यों? क्योंकि साइन ओमेगा टी प्लस 90 इज इक्वल टू क्या? कॉस फाइव, कॉस ओमेगा टी। ये एक फॉर्मूला है। देखो हमने फाइव का वैल्यू निकाला है कि नहीं? फाइव का वैल्यू क्या निकाला? 90 निकाला, तो साइन ओमेगा टी प्लस 90 आया। बट हमको पता है एक फॉर्मूला है जहां पर साइन 90 प्लस थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। हाँ तो सर। साइन ओमेगा टी प्लस 90 इज कॉस ओमेगा टी। इसका मतलब Q इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। समझा? समझा? सो तो ये लिखोगे, दिस इज व्हाट? चार्ज ऑसिलेट्स लाइक सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है? हाँ सर हाँ। समझ में आ रहा है धीरे धीरे? हाँ सर, हाँ। हौले हौले हौले। अगर Q इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी, तो I क्या था? I क्या था? अरे I क्या था? माइनस डी क्यू बाई डी टी ना, माइनस डी, हाँ। माइनस डी क्यू बाई डी टी। तो I क्या हो जाएगा? डी टी, डी ऑफ डी टी ऑफ क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, यस और नो? माइनस है तो क्यू नॉट तो कांस्टेंट है, तो क्यू नॉट बाहर आ गया। कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या है? माइनस साइन ओमेगा टी, यस और नो? अरे डी बाई कॉस ओमेगा टी का, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या है? माइनस साइन थीटा ना। थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन ओमेगा टी। बट ओमेगा का भी करना है तो ओमेगा आएगा, तो आंसर क्या होगा? क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये क्या होगा? आई का इक्वेशन। ये करंट का, एक चार्ज का इक्वेशन और ये करंट का इक्वेशन। समझा? तो व्हाट इज दिस क्यू नॉट डब्ल्यू? ये क्यू नॉट डब्ल्यू क्या है? ये है तुम्हारा आई नॉट। तो ये आपका, दिस विल एंड दी कॉन्सेप्ट सेइंग दैट, ये आपको निकालना है। फाइनली आपको बताना है कि करंट, देखो करंट अगर कॉस में हो रहा है, चार्ज अगर कॉस में हो रहा है, तो करंट किस में हो रहा है? साइन में हो रहा है। साइन में, हाँ सर। समझ रहे हो? तब दोनों में क्या अंतर है? 90 डिग्री का डिफरेंस है। फेज डिफरेंस कितना है? 90 डिग्री का। आया समझ में? हाँ सर, हाँ। आया समझ में? हाँ सर हाँ। मेन है, लिखा आपने, नोट डाउन किया? हाँ सर हाँ। यस सर। ओके। तो नेक्स्ट क्या है? तो हम लोगों ने इसके ग्राफ बनाएंगे, तो इसको अब रखो साइड में।
तो अभी हम लोग इसका प्लॉट करेंगे, क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे कि ग्राफ कैसे प्लॉट साइन करेंगे, और हाँ। टाइम। तो पहले हम क्या करेंगे, चार्ज का करेंगे। तो चार्ज का करते हैं। तो चार्ज का कैसा है, आपको पता है चार्ज कॉस में जाता है, तो साइन ऐसे जाएगा, कॉस यहां से जाएगा, ठीक है। तो ये पहले कॉस जाएगा, कैसा, ऐसे जाएगा, ठीक है। ये आपका कॉस का है। तो करंट कैसा रहेगा, करंट यहां से शुरू है तो यहां से शुरू होगा, यहां से शुरू होगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे करो, क्या आवाज, क्या रहा, फैन का आवाज आ रहा है क्या? सॉरी सर। नहीं, अरे पूछ रहा हूँ यार, हाँ सर। सॉरी। ओके, तो यहां पर जब यहां पर है, तो जहां पर Q0 है, तो करंट क्या होता है तुम बताओ। यहां पर Q है, यहां I है, तो यहां पर तुम्हारा चार्ज 0 है, तो करंट क्या है, मैक्सिमम है कि नहीं, हाँ आया समझ में। हाँ सर। जहां पर जहां पर जहां पर करंट 0 है, वहां पर Q क्या है, मैक्सिमम है। बट कौन से डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में। पोलैरिटी चेंज हुआ था, याद है, उल्टा हुआ था। हाँ सर, हाँ हाँ। तो फिर से Q0 है, तो मतलब यहां पर कांस्टेंट है, हाँ मतलब। बट करंट अभी देखो Q0 है, यहां पर करंट क्या है, मैक्सिमम है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। आ रहा है समझ में, धीरे धीरे। हाँ सर, हाँ आ रहा है सर, समझ हाँ में। सर। तो दिस यू हैव टू राइट। अब देखो, इसके बीच और इसके बीच में डिफरेंस है कि नहीं, डिफरेंस हाँ है कि सर, नहीं। डिफरेंस है सर दोनों के बीच में। तो मतलब वो जो फिगर है ना, इसके साथ हाँ मैच करोगे तो समझ में आएगा आपको। ओके। देख पहले क्या है, बैटरी कांस्टेंट है, बैटरी ऊपर है, सबसे ज्यादा है, मतलब चार्ज कैपेसिटर पूरा चार्ज है, मतलब करंट उसमें नहीं है ना, वो सर्किट में, तो जीरो। अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है, करंट घट रहा है, सॉरी चार्ज घट रहा है, करंट बढ़ रहा है। तो चार्ज घट के पूरा जीरो हो गया, करंट बढ़ के पूरा हाई हो गया, है कि नहीं। हाँ हाँ सर, हाँ। तो इंडक्टर ने पूरा ले लिया। इंडक्टर बोला मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में अभी करंट छोड़ूंगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट छोड़ूंगा, बट रिड्यूस करेगा। तो अब देख करंट क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। अभी चार्ज क्या है, बढ़ रहा है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। पहले यहां प्लस था, यहां माइनस था, अभी यहां माइनस हो गया, प्लस हो गया। तो करंट चार्ज ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहा है, बढ़ के हाई हो गया, और करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अभी क्या हो रहा है, करंट फिर से बढ़ रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये चलता रहेगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। क्लियर। यस यस सर। सर। तो राइट डाउन सेंटेंस, write down a sentence. In practical scenario, हाँ there सर। will always be some resistance, there will be some resistance due to coil of inductor, thus some energy will always be wasted due to the presence of this resistance, due to the presence of this internal resistance. Hence some energy will be. some energy will always be wasted due Okay. to the presence of internal resistance. किसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इंडक्टर का इंटरनल रेजिस्टेंस, हाँ because of which the oscillations will end with time। मतलब तेरा ऑसिलेशन जो है क्या होगा, ऐसे कंटिन्यूसली चलेगा नहीं, इट विल बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे घटेगा। क्यों, हाँ हाँ सर, इंटरनल रेजिस्टेंस के पास क्या बोला सर आपने? हाँ ओके, क्या बोला,
फिर से सुनो, इन प्रैक्टिकल सिनेरियो there will always be some resistance presence due to the coil of inductor. Thus some energy will always be wasted due to this internal resistance. hence हाँ hence the हाँ oscillation will end with time, or these oscillations are called damped oscillations. What oscillations? Damped oscillations. मतलब देखो यहां पर क्या है, कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है कि नहीं, कोई एंड है? एंड नहीं है। ये कब होगा? अगर तुम्हारा R 0 है, अगर ओनली LC है, R 0 है, बट तुमको पता है इंडक्टर का R रहेगा। अगर R रहेगा तो मतलब ये एनर्जी खाएगा, धीरे धीरे ये एनर्जी खाता रहेगा और वेस्ट होता रहेगा। पूरा एनर्जी कन्वर्ट नहीं होगा, EFE से MFE कन्वर्ट नहीं होगा, धीरे धीरे ये खाता रहेगा। ये खाते 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 क्या हो जाएगा? एक टाइम ऐसे आएगा जब ऑसिलेशन नहीं होगा, खत्म हो जाएगा। इसको बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। क्लियर? यस सर। Yes. एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल ऐसे पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम में तुमने क्या किया, थोड़े से एक साइड से लेके छोड़ दिया। व्हेन यू लीव इट, इट विल ऑसिलेट, बट आफ्टर सम टाइम इट विल स्लो डाउन और नॉट, बंद हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि तुमने क्या किया, एक बार तुमने फोर्स दिया। क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि रेजिस्टेंस है, एयर रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शन है। अगर तुम ये चीज स्पेस पे करोगे तो कंटिन्यूसली क्या रहेगा? होता रहेगा, बिकॉज इन स्पेस यू डू नॉट हैव एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन। ठीक है? Yes, sir. क्लियर? ओके। Yes, sir. So with this, I think we have come to the end of LC oscillations. ट्रांसफार्मर तुम्हारा है क्या आर्यन? Sir, he left, I think. अद्वैत, हाँ सर हाँ। ट्रांसफार्मर है? सर क्या मतलब सर? ट्रांसफार्मर है क्या तुम्हारे पोर्शन में? अरे ट्रांसफार्मर रे, क्या तुमको नहीं पता क्या सिद्धि? नहीं सर, स्टेट बोर्ड का अब तक इधर तक सिखाया नहीं है सर। क्या एक मैं चेक करती हूँ, एक मिनट। सिखाया नहीं है तुमको? स्कूल में नहीं सिखाया क्या अभी तक? नहीं सर, क्यों? स्टेट बोर्ड का लाइक मेरा कॉलेज इज इंस्टीट्यूट ना, तो दे डोंट फोर्स मच ऑन द स्टेट बोर्ड टॉपिक। Then how will you write board exam then? They have allotted the teachers, but they don't take much effort. ये क्या है? ये तो फेल हो जाओगे ऐसे करोगे तो। हाँ सर, मोस्टली वो नीट पे ही फोकस करते हैं। अरे बाबा, नीट का फोकस तब करोगे तुम बोर्ड एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में मार्क ही नहीं रख पाओगे तो क्या फायदा फिर? भगवान, आई डोंट नो। ओके, सो आई थिंक आपका ट्रांसफार्मर है नहीं, ठीक है? तो आई थिंक और एक नहीं है लास्ट सर। क्या हुआ? नहीं है ट्रांसफार्मर। नहीं है, लेकिन लेकिन तुम्हारा क्वालिटी फैक्टर नहीं है, वो भी नहीं है, वो नहीं पढ़ाना है, तुम्हारे पोर्शन में नहीं है। एक बार चेक कर अद्वैत कि तुम्हारे पोर्शन में है कि नहीं। हाँ सर, एक मिनट सर। अगर नहीं है तो मैं तुमको नहीं पढ़ाऊंगा, तो सिद्धि तुमको खाली वीडियो दे दूंगा इसका। मैंने आई थिंक यू कैन गेट दिस वीडियो इन द यूट्यूब। ओके, लास्ट पार्ट तुमने अटेंड किया था ना क्लास क्वालिटी फैक्टर? मैंने अटेंड किया था, आई थिंक कैरी के साथ अटेंड किया था। यस, तो उसका हो गया है,
तो अगर इनको नहीं पढ़ना है देन वी आर एंडेड द चैप्टर. अद्वैत Yes, sir. हाँ तू सर हाँ चेक करके आर्यन से बता मेरे को, ठीक है? आर्यन पता नहीं क्यों वाई हाँ सर हाँ Sir, he was having some network issue, I think, cause वो बार-बार जा रहा था, enter हो रहा था. Yes. ओके, दैट्स ओके, चलेगा. आर्यन लेफ्ट. आर्यन क्या हुआ? ओके, नो प्रॉब्लम. सो आई थिंक एवरीबॉडी अंडरस्टूड द क्लास टुडे. Yes, sir. ग्रेट, फाइन. सो नेक्स्ट चैप्टर क्या रहेगा अद्वैत? सर किसके बाद नेक्स्ट चैप्टर क्या रहेगा? सर ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर डुअल नेचर ऑफ लाइट. रेडिएशन एंड मैटर ड्यूअल Okay. नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर ओके, ठीक है. ओके गाइस, थैंक यू, बाय. Thank you, sir.